evening, everyone. I hope you're enjoying InsightX, this conference so far, and have gained beautiful insights from our diverse speakers. Yeah or no? Yes or no? Yes or no? That's Moderator right. आप हैं या मैं हूँ? Sorry. You know, we are living in the era जहाँ सबसे ज़्यादा youth population रही है throughout history, and that arises an unprecedented opportunity for young people to shape their future, but that also creates challenges for us to combat. But at the same time, we have also inherited the capacity to combat them and provide youth-led solutions. So, all of you, us, we, at our voice, firmly believes that young people are an asset to community. Our mission is to inspire, empower, and connect young leaders, enabling them to reach their full potential, shape decision making, and drive positive change in themselves, in their community, and in this world. The power of youth in action. To discuss how aspect of this topic, today we have amongst us two young leaders, youth leaders, talented. On my left hand side, Barrister Umar Farooqi and Bilal Jalil. You all are aware of them, you know what they did, their education and everything. But let me tell you one thing, the trio of us are from journalism background. Now you will say, he is Sahafi, journalist, I am also a journalist, and now you'll say, no, he is barrister. But you know, he is alumni of my college, MGM College of Journalism and Mass Communication. He was passionate about journalism, television journalism, and he even worked with Times Now, which I'm preparing to. Before diving into discussion, firstly, I would like to ask Barrister Umar Farooqi, what are the problems, challenges that you see around you today? Problems within the city, problems within our community that is impacting our community, our city. I want to know those problems. Surely. First of all, I would like to thank the entire team of InsightX, especially Basit Bhai, Sharik Sahab, Tehreen, the entire crew, Abuzar, Aksa for having us here. मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को एड्रेस करने में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज यूथ को और स्पेशली हमारे सिटी के यूथ को there are three major problems that we are facing. Number one is lack of opportunities. देखिए होता ये है कि हमारा यूथ औरंगाबाद का जब वो एजुकेशन हासिल करता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हासिल करता है, वो चाहे वो मौलाना आज़ाद कॉलेज से हो, देवगिरी से हो, MGM कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से हो या कोई भी स्ट्रीम से वो हासिल करता है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन उन्हें अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती. आप देखिए इसी वजह से हमारा जो टैलेंटेड यूथ है, जो टैलेंट पूल है, वो ज़्यादातर माइग्रेट कर जाता है फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे, बॉम्बे, बैंगलोर. तो ये जो कर पाते हैं वो 25% के करीब बच्चे होते हैं. जो अब्रॉड जाके स्टडीज़ करना चाहते हैं अराउंड 1 to 2%, 5% लोग अपनी सेविंग्स के ज़रिए, फैमिली सपोर्ट और स्कॉलरशिप्स के ज़रिए कर पाते हैं. लेकिन ये जो डेफिसिट जो मेजॉरिटी के लिए हो जाता है वो हमें अपने स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर कर कम खर्चे में, कम सैलरी में काम करने के लिए मजबूर करता है. तो ये जो डेफिसिट हमारे शहर में है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यूथ को मिल रहा है. देखिए अगर आप हैदराबाद का एग्जाम्पल लेंगे तो हैदराबाद आज से 30 साल पहले कुछ इसी तरीके से था. वहाँ पर भी वहाँ का जो यूथ था, वहाँ के जो टैलेंट पूल था, what they were doing was that they were moving out as well. They were moving out to Middle East, America, Canada, Australia. आप देखिए शिकागो में कई हैदराबादी है. तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. आज औरंगाबाद की पोजीशन भी उसी तरह है. अगर हमारे पास जिस तरह साउथ में विजनरी लीडरशिप ने काम किया, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को इस तरह रेवोल्यूट किया वहाँ पर कि आज साउथ ऑफ इंडिया में IT सेक्टर है, गूगल है, आप अमेज़ॉन है, ये सारे लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने ऑफिसेज. और अब हैदराबाद में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
बाहर का टैलेंट हैदराबाद आता है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। तो मेरा मानना है कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए एक विजन आता है तो आई थिंक डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस दैट आवर यूथ कैन गेट अपॉर्चुनिटीज़। द सेकंड इशू आई बिलीव इज दैट लैक ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे पास जो आज जो एजुकेशन चल रहा है, MGM है, देवगिरी है, ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस है। मौलाना आज़ाद कॉलेज है, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब को अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनकी, अब्दुल अज़ीम साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करे। इन लोगों ने इदारे ऐसे खड़ा किए हमारे लिए कि जो ख़ास तौर से कौम और उम्मत को काम आ सके। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन का माहौल है। इस ग्लोबलाइजेशन के माहौल को देखते हुए क्या हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिल पा रहा है? नहीं। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन पास किया जिसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया आकर वो अपने इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हमारा जो टैलेंट है उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब हम औरंगाबाद किस तरह बना सकते हैं, इस पर काम हो। और अगर ये हो जाएगा तो मैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कहीं नहीं हुआ, पूना में IT हब है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर हमारे पास काम होता है, पॉलिटिकल विल होती है, तो डेफिनेटली वी कैन डू अ लॉट और हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। वन लास्ट थिंग दैट आई विल एड्रेस इज ड्रग का प्रॉब्लम। देखिए, ड्रग का मामला ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास यहाँ पर, ये हम जो इस ऑडियंस में हम लोग हैं, वी ऑल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट। कोई ऐसा किसी का शौक़ नहीं है कि ये खुद जाकर उस चीज़ में पड़ता है, लेकिन इस ड्रग के इशू को आज हमारे कम्युनिटी में, यूथ में हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें चाहिए कि यूथ सेंटर्स हम इस्टेब्लिश करें, ऐसे यूथ सेंटर्स जो बच्चों को रिलीजियस तौर पर, बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के तौर पर हम किस तरह उन्हें एनकरेज कर इस साथ में ला सकते हैं, और उन्हें आइसोलेट मत कीजिए, आप उन्हें दरकिनार मत कीजिए, क्योंकि इट इज़ रिहेबिलिटेशन, रिफॉर्म, उसको आपको साथ में लेना पड़ेगा। तो इन माई ओपिनियन दीज 3 आर मेजर चैलेंजेस फॉर द यूथ ऑफ आवर कम्युनिटी। Now I would like to ask Bilal, what are your observations? Yes, thank you. Firstly, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कि आप लोग ने हमें लायक समझा कि हम यहाँ पर आएँ और अपने ओपिनियंस और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। I'm only going to add on to what Umar has said. Umar ने जो कहा है वो, these are the most important points of the city. There is a lack of opportunity, there is a need for no drugs and all of that. So just to, since I have time now and he's addressed the top important points, I'll just get into the details of it. When we don't have opportunities, the number one problem is that, as coming from leadership backgrounds, as coming from influential backgrounds of the city, where we can have a say in how things will change in the city, या city के अंदर बदलाव कैसा लाना चाहिए, तो I really try to sit down and be like कि भाई यहाँ की problem start कहाँ से होती है। तो ये जो problem का root cause है, for me priority is the importance of education, कि भाई आप तालीम को importance नहीं दे रहे जिस तरीके से देना चाहिए। Today I am able to sit here, today he is able to sit here, is only because our parents forced us to study and go out of our comfort zone and leave the comfort zone that I call Aurangabad. Aurangabad एक comfort zone बन चुका है। जब हम हमारे माँ बाप के साथ रहते हैं, जब हम घर में रहते हैं जहाँ पर हमको खाना टाइम पे मिल जाता है, कोई पाबंदी नहीं होती, so you tend to get into a comfort zone. And जब आप वो comfort zone में घुस जाते हैं, it's very tough to go follow your passion. So the kids who have opportunities to get the education, मतलब जो education जो बच्चों को passionately मिल जाती है, they lack passion sometimes, कि तो अरे अब हमने पढ़ लिया। लाइक यहाँ पर मैंने एक अप्रोच देखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या है कि भाई 10th तो हो गया, अब 12th भी हो गया, अब ग्रेजुएट हो गया। दैट इज़ ओनली लुक्ड ऑन एज कि यार ये तुम्हारे शादी के क्रेडेंशियल्स में काम आएगा, कि कल को तुम्हारा कोई लड़की से शादी करना है तो तुम ग्रेजुएट हो, या कोई लड़की पढ़ी लिखी है तो फिर आपको एजुकेटेड घर में है तो आपका रिश्ता होगा। तो हमारा एजुकेशन को देखकर अप्रोच ही बहुत गलत है इन टर्म्स ऑफ पैशनेटली फॉलोइंग अ ड्रीम, पैशनेटली फॉलोइंग व्हाट यू विश टू डू। एंड द वंस हु एक्चुअली हैव द पैशन टू गो आउट देयर एंड बी लाइक कि नहीं हम क्या वो एक शेर है, तरक्की की दौड़ में दौर उसी का चलता है, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकलता है। तो वो जो भीड़ से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो शहर में बहुत कई टाइम मैं नोटिस करता हूँ कि वो लेज़ी हो जा रहे हैं, और वो लेज़ी इसलिए हो रहे हैं because, like, I'll give you an example of my father, because I have seen him grow up, like I didn't see him grow up, but I've heard his stories. So his friend circle is, उन्होंने बेसिक्स होली क्रॉस गए, आज़ाद कॉलेज गए,
क्योंकि मैं मेरी एजुकेशन के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि आई वॉज वेरी प्रिविलेज टू गो टू पुणे, स्टडी इन एन इंग्लिश स्कूल, स्टडी इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो दैट इज़ अ होल न्यू डिफरेंट स्टोरी. बट व्हेन आई टॉक औरंगाबाद सेंट्रिक इशूज़, आई वांट टू हाईलाइट दिस. हिज फ्रेंड सर्कल में से ही इज़ द ओनली वन जिनको इंग्लिश में बात करने का शौक था. तो अगर आप उनके दोस्त देखेंगे तो वो आज भी ये कहते हैं, अरे तेरे आपको इंग्लिश में बात करने का बहुत शौक था भाई, हम लोग उससे बात ही नहीं करते थे. It was because he had that passion and he wanted to achieve that. So I think that's what set all of us apart, where we had the passion and we made sure that we'll go out. So number one problem that I'd like to highlight is that we are getting into a comfort zone that we should get out of. हम लोग lazy होते जा रहे हैं, और उसके लिए I strongly believe that you need to get out of Aurangabad for at least a year. एक साल के लिए अगर आप शहर छोड़ के जाएंगे, then you can come back and do greater things. Like you can come back and be like कि मैंने ये पूना में देखा, मैंने ये बॉम्बे में देखा, इन्होंने ये लंदन में देखा कि भाई ये शहर में ये हो रहा है और हम इतना पीछे हैं. So that's one very big problem. Second, the drugs. He said everything about it, so say no to drugs. Number three is how there is a problem that अभी रेहान ने अपने stand-up set में एक चीज़ बोली कि भाई मुस्लिम्स एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं है, वी आर फोर्स्ड टू लिव इन, वी आर इन घेटोज. वी डिड दिस, IIT का जो सोशल मीडिया, सॉरी द सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, दे केम अप विद द स्टडी वेयर दे सेड कि वाई आर मुस्लिम्स अंडर डेवलप्ड, वाई आर मुस्लिम एरियाज अंडर डेवलप्ड. एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि मुसलमान अंडर डेवलप्ड है क्योंकि वो एक साथ रहते हैं और वो डेवलपमेंट नहीं करते. इट इज़ अ सिस्टमैटिक घेटोइजेशन. मतलब अगर आप जालना रोड पे, जालना रोड के वो साइड अगर आप घर लेने जाएं शहर में, तो आपको घर नहीं मिलेगा. मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, अगर आप चले गए और आपने कह दिया कि आई एम फ्रॉम एन एक्स मुस्लिम फैमिली, आई वांट टू बाय अ हाउस हियर, दे विल नॉट गिव यू द हाउस. देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन औरंगाबाद. मतलब आप पूना बॉम्बे तो जाइए मत. देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन औरंगाबाद जहाँ पर अगर आपको घर लेना है तो यू कांट. हेंस यू आर फोर्स्ड टू कम टू एरियाज जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एंड देन यू मेक डू विद दैट. मतलब आप सेटल हो जाते हैं उसमें, and then उसकी वजह से आपकी आने वाली generations are forced to grow up in that, and then we grow up in like a ghetto, and then it becomes a joke, but it is the reality, you know. A joke is a reality, like it's a reality with like a pinch of salt, you know. तो यही हुआ है कि तो औरंगाबाद के अंदर जो लोगों ने 20 साल पहले, 30 साल पहले, not the ones who came up with the institutions, but the ones who came up with the town planning, जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ये तो इस शहर को हम बड़ा कैसे करेंगे. वो लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि 10 साल के बाद इस शहर में और बच्चे पैदा होंगे. वो लोग ने सोचा ही नहीं कि शहर ये आगे बढ़ने वाला है. इसीलिए आज हमारे पास पानी की प्रॉब्लम है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द पास्ट 10 years. और वो एक्सप्लोजन की वजह ये है कि जो पहले यहाँ पर जिम्मेदार थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये सिटी एक्सपैंड होने वाली है. तो आज हम वही पुरानी पाइपलाइन पे, वही मलिक अंबर की पानी की पाइपलाइन डिस्कस कर रहे हैं. इट्स बिकॉज वी हैवंट कम अप विद गुड आइडियाज़. आई एम होपिंग दैट द न्यू पाइपलाइन सॉल्व्स our problems कि हम 8-8 दिन 9-9 दिन Inshallah. Yes. That's why we are sitting here, and that's why InsightX is organized कि youth led सारी चीज़ें हो, और youth अपनी problems पे बात करें और उसके solutions जो है वो खुद ही निकालें. And that's why I think we try our sitting, and I'm the moderator, you both are panelists, and you will share your insights about what you think. So let's go towards another question. As you both are considered as youth icon, and पहले बताओ what is a youth icon. बता दो मुझे, मैं थक गया हूँ सुन के. क्या होता है youth icon जरा? Last night I checked your Insta profile. I don't follow it, but sorry for that. But it's around 30. Wow. She's given it up. मैं देख कर गई और मैंने follow भी नहीं किया. So it has around 34,000 followers, something like that. Mashallah. I wanted to know actually about you, how kind of person you are. So I think that creates a youth icon. So keep those things apart. I just want to ask you what are the initiatives you are currently working on, or about development, or about youth in our city, as you both are youth and you both are look up to a lot. Shall I start? Bilal will start. Okay, I will start. I am representing Dua Foundation here. Dua Foundation is an NGO that is run, that was established by my father, and I help operations and all of that in that. So in Dua Foundation, we've been trying to tackle at least 4 problems. One is
we want to empower the women of our city. So we started with this free stitching classes program that we've been doing for the past 6 years now. And in that we now have almost 800 girls जो आज फ्री में स्टिचिंग क्लासेस सीख कर गई हैं, और जब वो सीख कर जाती हैं हम उन्हें एक मशीन गिफ्ट करते हैं so that they can start their own small setup. So there's like 800 women, so I'm assuming 800 machines in the city are running around. और वो मोहल्ले में अगर वो 2-4 औरतों के भी अगर स्टिचिंग कर दें, थोड़ा यहाँ पे फिटिंग कर दें और ये सब कर दें, we will take credit for that, because that was the agenda, that we help women empower themselves. Number 2 is we have been working on students trying to get into government jobs, and so we started this thing called the police training academy, where जो बच्चों को भर्ती करना है पुलिस के अंदर, जो पुलिस में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हम फ्री में एक पुलिस ट्रेनिंग कैंप रन करते हैं कि where you can actually study for the competitive exam, and then we will also do the fitness test and all of that. I used to go for those fitness regimes as well, क्योंकि वो पुलिस में जाने के लिए एक X amount of आपको फिटनेस लेवल चाहिए, तो हम भी उसमें जाया करते थे. आज़ाद कॉलेज के ग्राउंड पे होता है, अभी भी हो रहा है. Number 3 is my flagship, and I really love this event, is this thing called the IJ Fest that I had done last year. The entire purpose was, we started with what is the problem. The problem is हमको ड्रग्स ख़त्म करना है शहर में, और ड्रग्स हम कैसे ख़त्म करेंगे, हम ड्रग्स की अवेयरनेस इसमें रेस करेंगे. अब ड्रग्स की अवेयरनेस रेस करने के लिए आई डोंट बिलीव कि आज मुझे 100 लोगों को एक रूम में इकट्ठा करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ गुड अबाउट ड्रग्स, व्हाट इज़ बैड अबाउट ड्रग्स, व्हाई शुड बी नॉट डू ड्रग्स. एवरीबडी नोज कि भाई ड्रग्स क्यों नहीं करना चाहिए, पर वी थॉट कि हम लोगों में एंगेजमेंट ऐसे ही बिल्ड करेंगे कि भाई वी विल ब्रिंग स्पोर्ट्स टू द पिक्चर. We are giving you an alternate to drugs. Do the drug of sports. So we came up with this cricket tournament, football tournament, kushti tournament, kabaddi. No, we didn't do kabaddi. We did kushti, we did bodybuilding and all of that. And then we did, and all around that place. Again, Mr. Kadri was very helpful. जो पड़ेगांव में center run करते हैं, where he tackles with a lot of drug abuse children and drug abuse kids of our age. So that event was all about saying no to drugs, and we made sure every day we hammered thousands of people coming in. We had a footfall of almost 1 lakh people coming in for 20 days, and रोज़ हम उनके ऊपर से यही हैमरिंग करते थे, why drugs are bad, why you should not do it, and it is not you and me who are doing these drugs. मैं बता रहा हूँ जो ड्रग प्रॉब्लम है वो यहाँ की नहीं है, वो एक 10 रुपए की गोली आती है जो मेडिकल स्टोर पे बच्चों को भी बेची जाती है. अगर कोई बड़ा वहाँ पे चला जाएगा वो देगा भी नहीं, वो मेडिकल स्टोर वाला भी बहुत शाना है. So that is the biggest problem. Those young kids who sit on the road के कोने में बैठे रहेंगे, आप उनको देख के पहचान लेंगे. And these are kids who don't remember what they're doing after they consume those pills. So these are the 4 things we have done. Yes. Barrister Sahab, what's your take on that? So my take on this is that after becoming barrister, coming back to my city, alhamdulillah लोगों ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा, और बहुत जगहों पर इवेंट्स हुए, प्रोग्राम्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसमें मैंने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए मैंने कहा कि जब मैं स्टूडेंट्स में कॉलेजेस में जा रहा हूँ, तो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम था मिशन एजुकेशन, which is still ongoing, where we are raising awareness on education, the importance of education for within our community. देखिए, पढ़ाई पढ़ना है ये सबको पता है, लेकिन हम किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस तरीके से हम अपने बच्चों को, जो अभी मैं हमारे सफ़र साहब से बात कर रहा था, उनसे हमारी बात हुई, एंड ही सेड कि अगर हम कुछ IQ टेस्ट की तरीके से हम कुछ कर सकते हैं. मैंने उनको इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, एंड देन मिशन एजुकेशन के ज़रिए हम लीगल एजुकेशन को ज़्यादा अवेयरनेस हम किस तरह कर सकते हैं, हमारे कौम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे वकील किस तरह बन सकते हैं, जजेस किस तरह बन सकते हैं. अभी जब मैं आया तो मुझे एक MP लॉ कॉलेज की स्टूडेंट मिली. From MP Law College. Raise Yeah. your hands. भाई वंडरफुल. सो मेरे कॉलेज मेट्स, जो मैं कहूँगा इन्हें कि ये लोग जो यहाँ पर, इसमें एक बच्ची थी, एंड शी सेड दैट यू नो आई एम इन माय फाइनल ईयर, एंड एक चीज़ हमारे पास ये है कि लीगल एजुकेशन के बारे में हमारे पास बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं. इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हमारे बच्चों को हम लीगल एजुकेशन किस तरह ला सकते हैं, इन बच्चों को, ख़ास तौर से बच्चियों को हम किस तरह जजशिप में किस तरह ला सकते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं. द सेकेंड थिंग दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन इज़ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस. देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है,
तो मैं मई के महीने में यूके गया था, मुझे कॉन्फ्रेंस में एक इनवाइट किया गया, वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर भी थे यूके के, और काफ़ी सारे यूके की कंपनीज थी जिसमें आईटी और फिनटेक के कंपनीज थे, एआई वाले कंपनीज थे। मैंने उनको कहा कि देखिए, आप लोग जब इंडिया को देख रहे हैं, मेक इन इंडिया और ये सब चीज़ें की बात हो रही है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ बढ़ा रहे हैं, तो आप महाराष्ट्र में औरंगाबाद आइए, हमारे टैलेंट पूल को आप देखिए, यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि इंटरनेशनल कंपनीज़ यूके से, यूएस से हम किस तरह यहाँ ला सकते हैं। इस पर हम एक पॉलिसी ड्राफ्ट कर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन। अगर वो हम कर सकते हैं तो बच्चों को एकेडमिक्स में हम काम आगे मिल पाएगा। The last thing that we are working on is also about sports collaborations. देखिए, जैसा हमारे पास महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन है और इंग्लैंड का लैंकशायर काउंटी काउंसिल है, तो उनके साथ लैंकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, जिसमें स्पोर्ट्स में क्रिकेट के जो लवर्स हैं उनको एक मौका मिलेगा। वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टच इज, इट्स नॉट पॉलिटिकल बट दिस इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट टू हैव अ पॉजिटिव पॉलिटिकल इम्पैक्ट। इसके लिए जो हमारी ओल्ड सिटी है, जो हमारा पुराना शहर है, कितनी तकलीफ़ें हैं ये हमारे रेहान भाई ने भी बताया, सब बात करते हैं। इससे रिजॉल्व पॉलिटिकल विल से हो सकता है। तो मैंने कोशिश की कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग एक साथ आएँ और उनका हमने एक डेलीगेशन लिख जाकर कमिश्नर साहब को दिया और उन्हें हमने ये बताया कि देखिए, जानबूझकर हमारे इलाकों को आप नज़रअंदाज करते हैं, ये नज़रअंदाजी बंद होना चाहिए और जब तक हम पॉलिटिकल विल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ये काम आसान नहीं होगा। और उसमें शारिक भाई ने और ज़मीर भाई, MIM, कांग्रेस, NCP इंक्लूडिंग शिवसेना, तो हमारा मानना है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है और इसके लिए भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। You said about sports collaboration or university collaboration. My next question was regarding that only, but let's switch it. You know, एक यही जुमला हम लोगों के ज़ुबान पे होता है, एक शिकवा गुना के क्या करें, हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है। So you know, we heard something about from Mariam or there are other speakers as well. So they said about their initiatives, what they did. So what you believe ke you know, to keep that thing aside, ke there are not enough resources, we know that, okay, we know that there are not resources, enough resources available. What on personal level youth can do? देखिए, I will address this question in such a way that resources cannot be detrimental to our goals. अगर हमारे पास resources की कमी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम हमारे गोल को अचीव कर नहीं सकते। अगर आप हिस्ट्री के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा हिस्ट्री का लेसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उनके पास कौन सी रिसोर्सेज थी, कितनी तकलीफ़ें थी, कितनी आजमाइशों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस्लाम पूरे दुनिया में फैला एट द शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल उठाइए आप, फ्रीडम फाइटर्स को क्या मामला था, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थी, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी, फेसबुक, सोशल मीडिया, लाइव और ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ादी मिली उनके हौसले और जज्बे के साथ। अगर आप नेल्सन मंडेला को पढ़ेंगे तो नेल्सन मंडेला अपार्थाइड का साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट था उसको लीड कर रहे थे, जेल में कई साल गुजारे, लेकिन एट द शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, रिसोर्सेज का होना इज एन एडवांटेज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन आप में हिम्मत भी होना चाहिए, आप में एक हौसला होना चाहिए कि नो, दिस इज द गोल आई वांट टू अचीव। तो ये चीज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रिसोर्सेज के बारे में ये तो ठीक है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसके मामले में, अल्लाह जिसको चाहे उसे नवाज दे। रिसोर्सेज बढ़ते कम होते रहते हैं, लेकिन डोंट बी टू स्टक ऑन रिसोर्सेज। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ही गिव अ वेरी ग्रैंड एग्जाम्पल कि भाई आप आज़ादी की लड़ाई लड़ने चले जाइए, बट व्हाट ही मीन्स इज समथिंग दैट कि भाई जिसको पढ़ना होता है, जिसको कुछ हासिल करना होता है, वो कहीं से भी हासिल कर लेता है। देयर इज़ नो, you cannot complain. The ones who want to be successful will never complain. The ones who want to get away will always complain. तो ये तो है ही, but this just adding an education point to it. My family, nobody went to a great school or a great college. The great schools and great colleges that Rehan went, they went there only. So there is a certain क्या कहते हैं outreach, मतलब वहाँ का output इतना होता है कि ये student यहाँ तक ही पहुँच सकता है. But my father, my chacha, they all used to tell me कि भाई जिसको पढ़ना है वो कहीं पर भी पढ़ लेगा. But I don't believe that. I believe कि भाई
अगर मैं मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज ही चला जाऊँ तो मेरा जो मेहनत वाला काम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं लॉ एक ऐसे वैसे कॉलेज से कर लूँ और अगर मैं लॉ एक ILS से या एक NLU से कर लूँ, so my life will be much easier in those 5 years of law school. I will have to struggle a little less. So resources is not the biggest complaint. It should be about your willingness and it only comes from your families. It only comes from you guys. कि भाई जब आगे जाकर आप लोग पेरेंट्स बने, make sure your kids you hammer them with education. कि भाई नहीं पढ़ना है उसके बाद everything else comes later. So just the stress on education is important. That's all. Thank you. And you said hammer them with education. I think our parents does that, but still there are youths. We will find them on. आप किसकी तरफ point कर रही हैं? And आप किसको point कर रहे हैं? आप बोल किसको रही हैं? There are still youths who don't do anything. What? Who? means there are many things. We should not complain. I believe Yeah. there are many things we can do. जी. Okay. But just the last- one sorry to interrupt. One I would like to add to this is that देखिए अक्सर ये होता है कि अगर हम resources पे reliant करने की हमारी आदत हो जाए तो we start going for कि नहीं हमारे पास लैपटॉप नहीं था, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था। अगर आप इन चीज़ों में फंस जाएंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपको हौसला मजबूत रखना है, यकीन अल्लाह पर कामयाब रखना है और आगे बढ़ने के इस उम्मीद के साथ कि वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल विथ मी। उन्होंने कहा कि ILS में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। टू एन एक्सटेंट येस। MP लॉ कॉलेज का मैं आपको एग्जांपल दूंगा बिलाल कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जो थे शिवराज पाटिल चाकूरकर, ही वॉज फ्रॉम MP लॉ कॉलेज। काफ़ी सारे जजेस जो है वो MP लॉ कॉलेज से थे। ठीक है रिसोर्सेज होना चाहिए लेकिन इस पर हम स्टकअप नहीं होना चाहिए। अपने हौसले मजबूत रखिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा आपको। और अगर लैपटॉप like चाहिए तो उमर भाई resources. का ले लेना। बिल्कुल। resources that matter. दुआ फाउंडेशन स्पॉन्सर्ड अनवर फारूकी। Okay. अब तो इम्तियाज भाई भी है यहाँ पर, तो हम यहाँ से प्लेस ले लेंगे उनसे। Lastly, almost everything has been covered up, but I want you both to give some ideas to youth what they can do for solution building. So basically my concluding words. Number one is I think कि भाई we as citizens of the city need to get over the idea or need to get over the desperate idea कि हमको औरंगाबाद को अगला पूना बनाना है या अगला बॉम्बे बनाना है। ये जो हम एक करते हैं ना, रोते रहते हैं कि यार पूना में क्या लाइफ है and all of that. Let's build the first Aurangabad, let's build a model city and let's try and beat that and let's not try and reach them. Okay, क्योंकि there are lots of flaws in that city compared to us. Second, Prozone Asia का largest mall नहीं है. We need to get over that. मुझे बहुत लोगों ने बहुत सालों तक ये कहा कि तो भाई हम औरंगाबाद में एशिया का लार्जेस्ट मॉल लेकर आ रहे हैं and it's not the largest mall. So get over that fact. Third, if you want to achieve something in life, excuses are not the best solution. Coming back to ideas, there is a pool and there is a bunch of very talented people over here. There is a bunch of talented people across the city, jinko you can look up to. Like suppose if anybody wants to become a chef, okay, we have a Michelin star chef over here. We have Mr. Mohib Farooqi. This is renowned world ranking chefs, okay. And for us, MashaAllah. for us to have someone like him over here, anybody who even remotely wants to cook should dream to become like him, okay. So that's what I'm talking about. We have people who've achieved the unachievable. We have a barrister. It's very tough to become a barrister. We have a Muslim member of parliament. It is impossible. People say it's impossible for a Muslim to become a member of parliament. So we have those kind of things. We have those kind of heroes that we have that we can look up to. So make sure you choose the right heroes. Make sure you choose the right path. And don't get distracted and keep your faith alive in Allah while you are on the track of your success. Everyone Yes. say inshallah. Thank you so much. And Inshallah. Inshallah. In response to your question, I will firstly say that we are living in an age of data information accessibility. We must have a proactive attitude towards that we have to do something beyond normal stuff. अगर आप कहेंगे कि मैं वही conventional चीज़ें करूँगा तो शायद आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे.
हमें चाहिए कि हम प्रोएक्टिव हों। प्रोएक्टिव का एक छोटा सा एग्जांपल हमारी करीब में है, ये है कि ये इनसाइट एक्स, ये जो हो रहा है, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोएक्टिवनेस। बासित भाई यूएस में बैठकर प्रोएक्टिवली हमारी कौम के लिए सोचते हैं। शारिक भाई, यहाँ पर जितने लोग हैं, जो जितने वॉलंटियर्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रोएक्टिवनेस। तो आप अपने एकेडमिक फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, जैसा मुदस्सिर नदीम है, देखिए मुदस्सिर नदीम को आई रियली एडमायर दिस गाय, बिकॉज उन्होंने जो हेरिटेज को औरंगाबाद की प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं और हमारे यूथ को बता रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। द सेकेंड थिंग आई विल सजेस्ट इज दैट वी मस्ट हैव द राइट इंटेंशन। We, the majority of the people who are here, I think all of us, come from the Islamic teachings. हमारी सही बुखारी में हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपके काम अच्छे होंगे और आपको काम में बरकत होगी। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, बहुत मैं आपको टेक्निकल बातें करूं कि देखिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, 12 घंटे पढ़ाई की और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट दिस एंड दैट, डेफिनेटली ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम सबको चाहिए कि हम हमारी नीयत सही सुधारें, अपने माँ बाप का अदब करें। देखिए, माँ बाप आपको बहुत उम्मीदों के साथ पढ़ाते हैं, बहुत उम्मीदों के साथ वो देखते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें चाहिए कि उन्हें उनका अदब करें, उन्हें मोहब्बत के साथ पेश आए, क्योंकि आज दिन ब दिन मॉरल वैल्यूज़ डिमीन होते जा रहे हैं, डिमिनिश होते जा रहे हैं। तो वो चीज़ हमें भूलना नहीं है और साथों साथ अल्लाह पर यकीन पक्का रखना चाहिए। चाहे जो हो जाए, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, क्योंकि आज के माहौल हमें मायूस करने वाला है। वो चाहते हैं कि आप घर बैठ जाएं, वो चाहते हैं कि आपकी हिम्मत पस्त हो जाए, लेकिन हमारा यकीन किस पर होगा? अल्लाह पर होगा। और हम सबको, स्पेशली द एजुकेशनल बैकग्राउंड से, जो अच्छे पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं, मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप जो स्ट्रीम उठाना चाहते हैं आप उठाइए। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आपको जर्नलिज्म करना है, लॉयर बनना है, लेकिन हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़िए, ख़ास तौर से प्रियम्बल को पढ़िए। प्रियम्बल जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात करता है। और आज जो हो रहा है उसका जो आप कंपैरिजन करेंगे तो देन यू विल हैव फेथ कि नहीं, ठीक है, चाहे कुछ हो, हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कुछ चीज़ों को एक्सीड नहीं करने देगा। और एट द एंड आई विल से कि हमारा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमारा विल पावर मजबूत होना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह करने वाला है, बाकी कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। इतना ही कहूँगा मैं, दैट्स इट।